turn our Bibles to the book of Deuteronomy 34:7. Moses was 120 years old. और देखिए वचन में लिखा है कि मूसा की उम्र 120 साल की थी And when he died, his eyes were not dim, nor his natural vigor diminished. जब वह मरा तो न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका पौरुष घटा था. You see, church, the Bible says that Moses was 120 years old. He was a man of the presence of God. हम देखते हैं कि बाइबल ऐसा कहती है कि मूसा की उम्र 120 साल की थी और वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला व्यक्ति था. Please listen very carefully. और बड़े ध्यान से सुनिए आज. And the Bible says something about his eyes. और बाइबल देखिए कुछ तो उसकी आंखों के बारे में बताता है. His eyes were not dim. His eyes were so good that he could, when God took him on that mountain, he could see Israel from so far. और देखिए उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी थी, उसकी आंखों की रोशनी बिल्कुल अच्छी थी और जब परमेश्वर उसको पहाड़ पर लेकर गया और वहां से वो पूरे इजराइल को देख सका. How many of you are listening right now? ये जो सुन रहे हैं इस वक्त Church, कलीसिया, you see, Moses enjoyed good health. आप देखते हैं मूसा ने अच्छी सेहत का लाभ उठाया. You see, when a person is in the presence of God regularly, देखिए जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर रहता है, I believe the Spirit of God energizes his body, और पूरे यकीन मानते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उसके शरीर में ऊर्जा भर देता है. energizes his spirit man, his body, उसके आत्मिक मनुष्यत्व को, उसके शरीर को ऊर्जा से भर देता है and it brings good health. और इससे अच्छा स्वास्थ्य उसे मिलता है. How many of you following me right now? कि तो समझ रहे हैं इस वक्त. Please listen very carefully. और बड़े ध्यान से सुनिए. Now, I'm not diminishing the role of food and exercise and rest. No, I'm not diminishing that. But this one thing that is so important that you need to understand. और देखिए खाना पीना या फिर अच्छा नींद लेना या फिर कसरत करना, Exercise, देखिए important. इन सारी बातों को हम घटा नहीं रहे हैं, लेकिन देखिए ये भी महत्वपूर्ण चीज है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं. But you see, when a person stays in the presence of God, his body is renewed. लेकिन आप देखते हैं जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर रहता है तब उसका शरीर नया बन जाता है. This is a secret which I want to share with you. ये एक रहस्य जो आपके साथ आज साझा करना You चाहता see, हूं. when Jesus was on the cross, his blood was drained out. आप देखते हैं कि जब यीशु क्रूस पर वहां टंगा हुआ था उसका पूरा लहू बह गया था. Now the life is in the blood. और देखिए जीवन यानी कहे प्राण जो है वो तो लहू में होता है. But you see, the Bible says one secret. It says the same Spirit that raised Jesus from the dead. In other words, the Spirit of God revitalized the body of Jesus. आप देखते हैं वही आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, यानी कि हम देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा ने यीशु के मृत शरीर में जान डाल दिया. How many of you following me right ये तो now? समझ रहे हैं इस वक्त. When you come into the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, I believe यकीन मानते हैं things which are not supposed to be in your body will go away. और जिन चीजों को आपके शरीर में नहीं रहना चाहिए वो निकल जाएंगी. Things which are not right in your body will be straightened out. और जो चीजें आपके शरीर में सही नहीं वो सीधी हो जाएंगी In the name of यीशु Jesus. के नाम में. How many of you listening right ये तो now? सुन रहे हैं इस वक्त. I don't know if you saw this testimony on YouTube. You know, you must regularly visit our channel. In this lady in Goa, she had a tumor in her mouth. और देखिए एक महिला जो How many of हमारे you saw गोवा that testimony? सभा में आई Oh, थी you कि मुंह में don't- एक you don't- गांठ हो गया था. Why is it that outside people see more what God is doing inside? और क्यों ऐसा होता है कि बाहर के लोग जो हैं ज्यादा देखते हैं जो परमेश्वर कर रहा है अंदर. सोचिए ना, चर्च वाले लोगों ने नहीं देखा. क्या बात है? It's on the YouTube, our channel. और देखिए हमारे चैनल YouTube पर है. There was a tumor, long story short, there was a tumor in her mouth. और देखिए लंबी कहानी को छोटा करते हैं, उनके मुंह में एक गांठ था And she was watching the live service. और वो लाइव सभा को देख रही थी. And I told the people, just worship the Lord. और इन लोगों से कहा चल बस प्रभु की आराधना करें. And next day, और अगले दिन the tumor was gone. और वो गांठ निकल गई. I didn't touch her. पासवान जी ने उनको नहीं छुआ I cannot claim anything. और किसी भी चीज का पासवान जी दावा नहीं कर सकते. मैं कुछ भी नहीं दावा कर सकता हूं. It is her and God. ये तो उनके और परमेश्वर के बीच की बात थी. How many of you listening right now? ये तो सुन रहे हैं इस वक्त. Please listen very carefully, sir. सुनिए बड़े ध्यान से इस It वक्त. is nothing got to do with me. इनके साथ उनका उसका कुछ भी लेना देना नहीं था. It is her ये उनका and encountering the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति से मुठभेड़ होना है. So today, if you come over here, तो आज अगर आप यहाँ हैं you know when the worship service is going on, और देखिए जब आराधना का सत्र चल रहा हो, don't look here and they connect with the presence of God. यहाँ आपको नहीं देखना है, परमेश्वर की उपस्थिति से सीधे जुड़ जाइए. The first thing that happens when a person connects with the presence of God is he or she
receives healing in their physical bodies. पहली चीज, जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, अपने शरीर में चंगाई को पाएंगे। You see, many times देखिए बहुत बार I'm exhausted. I'll tell you the truth. I'm exhausted sometimes. कभी You कभी know, एकदम थक जाते हैं। I was preaching on Thursday, I was preaching on Friday at Vashi, and something else on Saturday. In the morning, this service. And each service, it has to be a new message. और देखिए गुरुवार को भी देखिए प्रचार किया, फिर शुक्रवार को वाशी में, फिर उसके बाद लगातार देखिए शनिवार को, फिर अभी सुबह देखिए हर बार जब आते हैं तो कुछ ना कुछ एक नया संदेश होना चाहिए। Like, I have to be totally in the presence of God. और पूरी तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में टिके रहना पड़ता है। No time for nonsense. और बेतुका चीजों के लिए कोई समय नहीं। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? Yes. You know, when we went to Vashi, देखिए जब वाशी में गए थे, everybody was like this. सभी लोग एकदम ऐसे थे। Ask Pastor Ravi. They were just like that. एकदम तन के वो खड़े थे। अभी ये कुछ अभी rabbit निकालेगा अभी ये. And as we went down from the stage, और हम मंच पे से नीचे उतरे somebody was roaming. और कोई ऐसा, You know, I remembered, oh, I wish I was in the vow service. याद आया। Hello, are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त? Pastor Ravi did something very terrible. He caught somebody's hand thinking it was a boy. It turned out to be a girl. Hey, किधर जाते हैं? Hey, किधर जाते हैं? I was prophesying over, and thus somebody went right from the middle. Hey, किधर जाता है? So he picked, come on now. He didn't do it purposely. It turned out to be a person, come on, I don't want to say anything. So you see, church, तो आप देखते कलीसिया, it's very important ये बहुत महत्वपूर्ण है that you are connected to the presence of God. कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ जाए। बोलने से कुछ काम नहीं होता है. You just talk, nothing happens. और बोलने से कुछ नहीं होता। How many of you are following me right now? कि तो समझ रहे हैं इस वक्त? So today, तो आज I'm telling even the so-called Christians, यहाँ तक कि जो लोग मसीह कहलाते वे भी, many of you don't know how to connect with the presence of God. आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते परमेश्वर की उपस्थिति से कैसे जुड़ना होता You है। pray, आप प्रार्थना करते हैं, you're like that bulb, you know, that Chinese bulb, no? ऐसा प्रार्थना करते हैं, आंख खुलती है. सब लोग की आंख बंद है, तू भी आंख बंद करता है. I'm really telling you, many of you, please don't get angry on me. और मेरे पर ये गुस्सा नहीं होना है। You don't know, some of you, how to connect with the presence of God. You never had an encounter where God's presence comes so close to you that you're just weeping in the presence of God for hours. Hello, you never had that. और कभी आपने ऐसा अनुभव नहीं किया कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके करीब आती है और आपकी मुठभेड़ हो जाती है उससे, और आप कई घंटों तक ऐसे बस रोते रहते हैं, बस उसकी उपस्थिति में बने रहते हैं। Hello, are you with me right now? क्या साथ में आप इस वक्त? Go with me to 2 Corinthians 12:10. चलो निकाल दूसरा कुरिन्थियों 12वां अध्याय 10वां अक्षर। Look what he says. Paul wrote, he says, when I am weak, फिर पौलुस यहाँ लिखते हैं कि जब मैं कमजोर होता हूँ then I'm strong. तब मैं मजबूत होता हूँ। ये क्या बात है? जब मेरी टांकी खाली रहती है, मेरी टांकी भरी रहती है. तो बोले, now you understood. अब आप समझ गए। अभी आपकी बत्ती चमक गई सर. When I'm weak, then I'm strong. जब मैं कमजोर होता तभी मैं सामर्थी, ये ताकतवर होता हूँ। Paul, are you okay? Did you have your breakfast? फिर पौलुस, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है ना? सुबह का नाश्ता अच्छे से किए? What Paul was saying is, देखिए पौलुस क्या कह रहे हैं? when I'm physically weak, जब मैं शारीरिक तौर पे कमजोर पड़ता हूँ, that time the presence of God energizes me. उस समय परमेश्वर की उपस्थिति मुझे ऊर्जा से भरती है। Come on, somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। You see, जब आदमी ना बहुत ताकतवर होता है ना, जब आदमी ताकतवर होता है ना, उसको परमेश्वर की ताकत नहीं बोले, क्या रे? इधर आ, बजाता हूँ ये कभी. वो किसी की, hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं? क्योंकि अभी वो शक्ति से जीता है अपनी. कैसा जीता है? अपनी शक्ति से जीता है. जब पैसा रहता है, जब आदमी के पास पैसा रहता है, शौहरत रहती है, तो उसका बोलना भी ना थोड़ा बेस रहता है ना. Come on now, hello. But when the person is not having money, लेकिन जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता, he is weak. कमजोर पड़ा हुआ है, Now he doesn't have anything. अब उसके पास कुछ भी नहीं है, So he says, hello sir. You're weak. आप कमजोर हैं। How many are understanding right now? क्यों समझ रहे हैं इस वक्त? At that time, उस समय पर there is nothing for you to lean on. और आपके पास ऐसा कोई नहीं है जिसका आप सहारा या टिका ले सकते। No money, पैसा नहीं है, no position, कोई ओहदा नहीं है, no influence, कोई प्रभाव नहीं no है, physical strength. ना ही शारीरिक ताकत है। At that time, उस समय you say, God, आपको कहना चाहिए परमेश्वर, you are my strength. तू ही मेरी ताकत है, And the strength of God fills you और right now. परमेश्वर की ताकत आपको भर देगी। That's what happens to a sick person. यही तो होता है एक बीमार व्यक्ति के साथ, That's what happens to a broken person. यही होता है एक टूटे हुए व्यक्ति के साथ। That's why इसलिए God is close to the broken-hearted. परमेश्वर टूटे दिल के लोगों के करीब है।
How many of you following me right now? क्यों समझ रहे हैं इस वक्त? जब मैं कमजोर हूं तब मैं ताकतवर हूं. That's why when you fast, इसलिए जब आप उपवास करते हैं and God's power works in you more. परमेश्वर की सामर्थ अब आपके अंदर और ज्यादा काम करती है. Why? क्यों? Because now you are weak. क्योंकि अब आप कमजोर पड़ गए. When you're fasting for 3, don't try this, okay? लेकिन आजमाना नहीं इसे. 3 days, no food. और 3 दिन तक कुछ खाना नहीं. I'm not talking, some people fasting, उनको क्या लगता है ना, पूरा दिन fasting करो, रात को मस्त खाओ, Everyone say must. सब लोग कहें मस्त. Must मतलब mountain. खाओ तेरी तो. No. नहीं बिल्कुल नहीं. 72 hours, no food. 72 घंटे तक कुछ खाना नहीं. 2 लोग गिर गए उधर, देखो. 72 hours, no food. 72 घंटे तक कोई खाना नहीं. Only water. सिर्फ पानी. I tried it. पासवान जी ने आजमाया. On the second day in the night, और दूसरे दिन रात के समय I opened my window because I was getting the aroma of vindaloo. और इन्होंने खिड़की खोले कि विंडालू की महक आ रही थी. अरे मैं बोला 2 बजे कौन विंडालू पका रहा है? से लड्डू घूम रहे थे, मुंह में पानी आ रहा था, बहुत भूख में पेट पकड़. नो रियली, हेलो, सचमुच कह रहे हैं. आई एम टेलिंग यू, वो अंदर की जो डिजायर्स थे वो बाहर निकल रहे थे. अंदर की सारी लालसाएं बाहर आ रही थी. आई एम टेलिंग यू चर्च, I've tried this on many occasions. कई अवसरों पर इस बात को इन्होंने आजमाया है. I couldn't even go out यहां तक कि बाहर भी नहीं जा सके. because my sister had locked the door. क्योंकि I only had told her. I'm telling you, कह रहे हैं आपसे, at that time, उस समय पर I cried out to God इन्होंने परमेश्वर को पुकारा. and said, Lord, इन्होंने कहा प्रभु please let your power rest upon me. मेहरबानी करके तेरी सामर्थ मुझ पर ठहर जाए. The next day, अगले दिन in the meeting, सभा में people, those who, I came on the stage देखिए पासवान जी मंच पे पहुंचे and I said, Holy Spirit, come. और इन्होंने कहा पवित्र आत्मा आ. Half the congregation fell down. आधे मंडली गिर गई. Yes. जी हाँ. Now you don't try it, please. आप लोग मत आजमाइएगा मेहरबानी Unless करके. God is told you, God has to, pastor ने किया, मैं भी करेगा. तुम हॉस्पिटल में जाएगा, मेरा नाम लेगा. Don't do that. ऐसा नहीं करना है. So when I'm weak, जब मैं कमजोर होता हूं then I'm strong. तब मैं ताकतवर होता हूं. Hello, are you with me right now? आप साथ में हैं इस वक्त? You see, so today, तो आज give your weakness to God. अपनी कमजोरी परमेश्वर के हवाले करिए. Don't bring your weakness on the Facebook, but give your weakness to God. अपनी कमजोरी फेसबुक पे मत लाइए. अपनी कमजोरी को परमेश्वर को दे दीजिए. Lord, मैं टूटा हुआ हूं, मुझे बलवंत बना. God will bless you. God will heal you. परमेश्वर आपको चंगा करेगा. Come on, somebody, praise the Lord. चलिए कोई तो कहे प्रभु जब हम अपनी कमजोरी को लोगों के सामने लेके आते हैं ना, लोग फायदा उठा सकते हैं. लेकिन जब हम अपनी कमजोरी खुदा को देते हैं ना, खुदा उसको स्ट्रेंथ में बदल देता है. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? हम लोग कमजोरी अपने लोगों को क्यों बताते हैं पता है? थोड़ी सी तसल्ली पाने के लिए. लेकिन सर आपको तसल्ली मिलेगी, लेकिन इफ यू गिव योर वीकनेस टू गॉड एंड से लॉर्ड आई एम ब्रोकन, लॉर्ड मैं टूटा हुआ हूं, लॉर्ड मुझे हीलिंग चाहिए, प्रभु की प्रेजेंस आएगी, आपको उठा लेगी. दिस इज द ट्रूथ. ये सच्चाई है. How many of you are receiving this right now? ये तो ग्रहण कर So रहे हैं today, तो आज as we go into worship, जैसे आराधना में हम जाते हैं, say, Lord, I need your strength. अब वो कहना है परमेश्वर मुझे आपकी ताकत चाहिए. Please touch my life. मेहरबानी करिए मेरी जिंदगी छूए. That's what happens to a person who is connected to the presence of God. यही होता है उस व्यक्ति के साथ जो परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ा रहता है. Lift your hands and say, Lord, help me to connect to your अपने presence. हाथों पर उठाकर कहे प्रभु मेरी मदद कर तेरी उपस्थिति से जुड़े रहने How के many लिए. of you are saying amen to that right now? कितने लोग कहते हैं आमेन इसके लिए. The second thing, what happens when you are connected to the presence of God? दूसरी चीज क्या होती है जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ते हैं. Write it down. Open your Bibles. लिख लीजिए अपना बाइबल खोलें. Please, मैं थोड़ा सा, imagine you're going to the school and you never open the Bible. जरा कल्पना करें आप स्कूल जाते हैं और कभी आप अपनी पुस्तक नहीं खोलते, कुछ बाइबल नहीं खोलते. बोले तू बोल, टीचर बोलते जा. Teacher. I was a teacher. I don't want to tell you. Sometimes I'll tell you. Psalm 16 verse 11. भजन संहिता का अध्याय 1611. What happens to a person who's connected to the presence of God? क्या होता है उस व्यक्ति के साथ जो परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ा रहता है? Go with me to Psalm 16 verse 11. You will show me the path of life. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा. जीवन का क्या? रास्ता दिखा. जीवन का रास्ता. Yes. In your presence is fullness of joy. तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. तेरी उपस्थिति में क्या है?
आनंद की भरपूरी है. It says, in your right hand there are pleasures forevermore. So when a person is connected to the presence of God, Lord, I connect to your presence. Holy Spirit, come. You know what happens? God starts directing your ways. जब कोई व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ता है, पवित्र आत्मा मैं तेरी उपस्थिति से जुड़ता हूं, आजा मेहरबानी करके, तब क्या होता है? परमेश्वर आपके रास्तों में आपकी अगुवाई करता है. Praise the Lord. Please listen, sir. सुनिए ध्यान से. If you are confused, it could be possible that you are not connected to the presence of God. अगर आप गड़बड़ी या उलझन में हैं, तो संभावना है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़े हुए नहीं हैं. मुझे क्या करने नहीं मालूम, मैं confused हूं, मैं depressed हूं. Get connected to the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ जाइए. Your 100 rupees may become a crore. आपका 100 रुपया जो है करोड़ों में बदल जाएगा. Sir, really, sir? सचमुच कह रहे हैं. Sir, really, I'm telling you. Hello, sir, listen. सुनिए. ऐसा मत सोचो ना कि मैं पब्लिक बोलती हूँ, करोड़ बोलेगा ना तो हालेलुया, आई रिसीव ये सब आवाज आती है. प्रभु 1 करोड़ से भिखारी नहीं होता है. प्रभु के पास बहुत है. प्लीज लिसन. सुनिए. See what it says. देखिए वचन क्या कहता है. You show me the path of life. Show me. You will show me the path of life. So when a person gets connected to God, suddenly he receives a word. अच्छा, अभी ऐसा करना है. अच्छा, okay. एक ही दिन में पूरा महल नहीं बनेगा. But slowly, your direction will change. Sir, really I'm telling you. आपसे कह रहे हैं. This is the truth. ये सच्चाई है. So the second thing happens when a person who is connected to the presence of God is this, that person, may it a businessman, maybe housewife, कोई गृहिणी हो, maybe it's a student, कोई विद्यार्थी हो, you receive direction from the Lord. आप प्रभु से मार्गदर्शन को पाएंगे. Not worldly direction, but godly direction. सांसारिक मार्गदर्शन नहीं, लेकिन देखिए परमेश्वर का मार्गदर्शन. Somebody shout hallelujah. I said hallelujah. You see some people, you see their faces like, limbu nichoda limbu na. उनके पास बैठने को भी तो मुझको डर लगता है. बोले दूसरे सीट में बैठेंगे हम लोग. A person who has direction, एक व्यक्ति जिसके पास मार्गदर्शन हो, there's joy on his उसके face. चेहरे पर खुशी रहेगी. Come on, somebody, praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Please don't get mad at me. और गुस्सा मत होइएगा. See yourself in the mirror. अपने आप को आईने में देखें. भाई तेरा थोड़ा ऐसा क्यों है? नहीं, मैं ज्यादा होली हूं ना, इससे तेरे को गोली मारना चाहिए. होली नहीं, होली. यीशु मसीह ऐसा नहीं था. यीशु मसीह के पास चोर लुटेरे सब आते थे. बोले बॉस ये अपना आदमी है. No, really, I'm telling you. सचमुच कह रहे हैं आपसे. He was, come on now. और तुम ऐसा थोबड़ा बना के बैठ दो, कोई बैठने को तैयार नहीं भाई तुम्हारे पीछे बाजू में. अभी सब लोग हंस रहे हैं. No, really, please listen to me. सुनिए ध्यान से. Don't show off your religiosity, show off your spiritualness. So when you are in the presence of God, not only you will receive direction, but you will tell them, बेटा ऐसा कर. बोले बहन ऐसा कर. अच्छा, the path of life. Everyone say path of life. सभी लोग कहें जीवन का रास्ता. Come on, somebody say path of life. चले कहें जीवन का रास्ता. I decree your business will never go down. Your business will go high. करते आपका व्यवसाय कभी नीचे नहीं जाएगा. आपका व्यवसाय जो है उड़ान पकड़ेगा, ऊपर पे जाएगा. Notice it does not say show me the path of life. और देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं सिर्फ रास्ता दिखाने नहीं, सिर्फ रास्ता नहीं, जीवन का रास्ता. प्रभु सिर्फ रास्ता नहीं बताएगा, जीवन का रास्ता बताएगा. बहुत सारे रास्ते होते हैं भाई. The third thing, तीसरी चीज, you see, when you are connected to the presence of God, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ते हैं, you will be full of joy. आप आनंद से भर जाएंगे. बोले तेरी नौकरी गई, तू हंस रहा है, पागल हो गया क्या? बोले डोंट वरी, बड़ी नौकरी आ रही है. बोले ये पागल है यार. Fullness of joy. You see, the person who is in depression, the person who is in oppression, is not connected to the presence of God. In your presence is fullness of joy. कोई व्यक्ति अगर तनाव में है, सताव में है, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. Hallelujah. बोले हालेलुया. I'm telling you, this is a secret that will keep you under pressure. और देखिए ये वो चीज है जो आपको हंसी के उसमें बनाए रखेगा. I did not tell pastor, I'm just saying this again. Pastor, to build the oasis is not a joke. और देखिए ओएसिस बनाना कोई मजाक की बात नहीं. Ask my wife. बस अनीता जी से पूछेगा. It's not a joke.
it is possible? कैसे ये संभव है? In your presence तेरी उपस्थिति में is fullness of joy. आनंद की भरपूरी है. You see, sir, सुनिए, your whiskey cannot give you joy. आपकी विस्की आपको वो खुशी नहीं दे सकती. Hello, sir. आपका पैसा आप पी लो, मुझे कुछ नहीं है. No, seriously. लोग सोचते हैं, चल गम डुबाने के लिए रम. खूब डूब जाता है फिर, और दूसरों को भी डुबाते हैं. आदमी झूम के है ना, बेचारी बीवी उसके साथ उसको पकड़ के झूम रही बेचारी. बच्चे रो रहे हैं, डैडी गब्बा तेरी तो थोबड़ा मार. This is the house. This is the house of many people. यही बहुत सारे लोगों का घर है. गम डुबान टेन्शन आहे, कशाला पितो, खूप टेन्शन आहे. अरे तुला टेन्शन आहे, सगळ्यांना टेन्शन आलं आता. तू घालून झोपतोस, सगळे जागे आहेत घरी. No really, listen to me. सुनिए हमारी. This is how. अरे मैंने देखा है. वो बीवी बच्चे बोलते हैं ये क्यों आता है घर पे. One boy, listen to me. Can I tell you the truth? I just remember one day. एक दिन One of, not this meeting, but we had a small meeting earlier. This was years back. One boy wrote to me in a pencil. सच बोल रहा हूं before God. लड़के ने पेंसिल से इनको कुछ लिख के दिए. I say this before God. परमेश्वर के सामने कह रहे. Listen to this. सुनिए, He wrote to me in a pencil. पेंसिल से उन्होंने लिखा, Dear brother. प्रिय भाई. You know how a third standard boy would write? Hello. Dear brother. Please pray that my father stays, I'll not take the name of the place, somewhere in Gulf, and we stay happily over here. He drinks a lot. Please pray. मतलब वो उधर ही रहे, हम लोग इधर ही रहे. A third standard boy, I still remember, third standard, some ABC, I don't know what. When I looked at that, जब इन्होंने देखा, I cried. रो पड़ी. I said, God, इन्होंने कहा, परमेश्वर, I hope no father sees this. मैं आशा करता हूं कोई पिता वो उधर ही रहे, हम लोग इधर ही रहे. थर्ड स्टैंडर्ड का चाइल्ड लिख रहा है, बच्चा लिख रहा है. My friend, दोस्त, you don't need alcohol. आपको शराब की जरूरत नहीं. You don't need a cigarette. आपको सिगरेट की भी जरूरत नहीं. You don't need drugs. आपको ड्रग्स की जरूरत नहीं. You don't need medicines for you to sleep. आपको सोने के लिए दवाइयों का सेवन करने की जरूरत नहीं. What you need is to get into the presence of God. आपको जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए. The fullness of joy. आनंद की भरपूरी. Somebody shout an amen right now. चिल्लाए आमेन इस समय. Hallelujah. हालेलुया. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे. Otherwise, नहीं तो जो कुछ तुमने बांधा है ना, वो बह जाएगा. I want to tell everyone over here. हर एक से कहना चाहते हैं This is the truth. ये सच्चाई है. This is the truth. ये सच्चाई है. You're outing. Many people they say, चल तो मजा. Outing के बाद बोले बहुत यार थक गया यार. You need a vacation from your vacation. छुट्टी से बाहर आने के लिए फिर आपको छुट्टी की जरूरत पड़ती है. Where I'd gone to East tour, and now what you're doing? I'm touring on the bed. Fullness of joy. आनंद की भरपूरी. I'm not against. Please listen. Don't look at me. लगता है मेरे को ही बोल रहा है. नहीं, तेरे को नहीं बोल रहा है भाई. मैं मेरा मैसेज है. अगर तेरे को लग रहा है वो प्रभु बात कर रहा है. डोसा होटल में सबके लिए पकता है. किधर सुन रहा है? No, listen to me. I want to tell you, if it's nothing wrong, I'll have to go out too. But if your joy comes from that, लेकिन it's अगर wrong. आपका आनंद और खुशी उसमें से आ रहा है, हमारा joy जो है, our joy should not come from that. हमारे आनंद हमारी खुशी उसमें से नहीं आनी चाहिए. Our joy should not come from that. Our joy should come from the presence of God. That's what I'm talking. और खुशी जो है प्रभु की उपस्थिति में से आना चाहिए. How many of you listening right now? सुन रहे इस वक्त. बोले चलो रात को जाएंगे, रात को. बोले तेरे को रात को ही झटका क्यों आता है? रात को बोले 1 बजे चलो घूमते, बाइक लेके घूमते. If your joy comes from that, अगर आपकी आनंद और खुशी उसमें से आ रही है, that's dangerous. तो वो खतरनाक है. Your presence, your joy should come from the presence of God. आपकी आनंद और खुशी प्रभु की उपस्थिति में आनी Going चाहिए. for a late night drive with your wife, your children, slowly, nicely, गलत नहीं है. जाओ, जाना ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव जाना जरूरी है. बट अगर आपकी खुशी
उससे आती है, गलत नहीं है सर. हेलो 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 हेलो, हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग राइट नाउ? कितना समझ रहे हैं सर? फैमिली के साथ बाहर जाना, खाना खाना, हंसना खेलना करना चाहिए, बहुत जरूरी है. बट अगर तुम्हारी खुशी उससे ही आती है, समझो, बोलो उससे ही. हाँ, बोला सैटरडे चल पिक्चर, दूसरे सैटरडे चल पिक्चर. अरे भाई पिक्चर रिलीज नहीं होगा, बोलो चल किधर तो भी चल. चल चल जाएंगे पिक्चर में, तो मॉल में 2 चक्कर काट के आएंगे. तुम्हारी खुशी अगर इस चीजों से आती है, then you're on dangerous territory, brother. तो आप एक खतरनाक इलाके में हैं भाई. Your joy, आपकी खुशी the third thing, should come from the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे आनी चाहिए. How many of you say amen to that? किधर कहते हैं आमीन इसके लिए? Hallelujah. Lift your hands and say, Lord, help me to be connected with that joy. अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु मेरी मदद कर उस आनंद और खुशी से जुड़ने के And I लिए. guarantee you, church, और आपको यकीन दिलाते हैं, when the enemy knows कि बाबा इसका कुछ भी टच कर, इसको कुछ नहीं होने वाला है, enemy बोले उसको छोड़ रहे बाबा, उसको टच करके फायदा नहीं है. The enemy power over your life is breaking today. शत्रु की शक्ति आपके जिंदगी में से टूट रही है आज. In your right hand are pleasures forevermore. Listen to me. Even I'm telling you, sir, सुनिए, आपसे कह रहे हैं, there will be joy in your house. आपके घर में ऐसी खुशी होगी, There will be joy in your marriage. शादी में खुशी होगी. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. I'm telling you, sir. कह रहे हैं आपसे जनाब. Don't look at other people and say, see how they are going and we. You know, some people they're going in the building, bye, the whole building, no, bye. Hello? सुनिए, And you get so jealous. और आपको Yeah. तो देख के बहुत थोड़ा जलन होने लगता है. Bye. See. बाजू वाले को बोल, वो लोन लेके जा रहा है. वो जो बाय उसकी औरत बोले बाय. Pastor, how do you know? पासवान जी, आप कैसे जानते हैं? I pray for the prayer requests. प्रार्थना कर सो कर ऐसे प्रार्थना करते हैं. बोले ये आदमी ने मुझे बताया नहीं इतने जोर से बाय नहीं बोलती इसमें. This is the truth. ये सच्चाई है. नहीं पास्टर जी, सच बोल रहा हूं. This competition और ये प्रतियोगिता to show people लोगों को दिखाने के लिए we are cool. कि हम एकदम अच्छे हैं. We are cool dudes. You're not cool, you're a fool. Trying to be cool, acting like a fool. Everyone say, being connected. You know, offering लिया क्या रे भाई? फिर ठीक है. पब्लिक को अच्छा नहीं लगता है, सच बोलेंगे अच्छा नहीं लगता, उनको मस्का मारो, बटर मारो, बहुत अच्छा लगता है. The first thing, being in the presence of God will renew your body, will bring healing. Come on, पहली चीज, hallelujah. परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से देखिए, ये आपके शरीर में देखिए नयापन लाएगा, चंगाई को Second लाएगा. thing, being in the presence of God, दूसरी चीज देखिए, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से it will give you direction. ये आपको मार्गदर्शन देगा. It will give you direction. ये आपको मार्गदर्शन देगा. Third thing, तीसरी चीज, being in the presence of God परमेश्वर की उपस्थिति में रहने will से bring fullness of joy. ये आपके अंदर आनंद की भरपूरी. Can I have a good amen right now? अच्छा, मैं सुन सकता हूं. We're going to pray right now. We're going to pray. Go with, you see, Nehemiah 8:10. देखिए, नहम्याह का 8वां अध्याय 10वां वचन. The joy of the Lord is your strength. प्रभु का आनंद तुम्हारी ताकत है. Yeah. Can I tell you something, please? क्या आपसे कुछ कह सकते हैं इस वक्त? Why does Satan attack your job? क्यों शैतान जो है आपके नौकरी पे हमला करता है? Does Satan want that job? क्या शैतान को नौकरी चाहिए? Listen, if Satan does not want your job, अगर शैतान को आपकी नौकरी नहीं चाहिए, then why is he attacking it? तो क्यों उस पर वो हमला कर रहा है? Because he knows क्योंकि वो जानता है that if he can attack your job, कि अगर आपकी नौकरी पर हमला कर सके, you will lose your joy. आप अपने आनंद को गंवा बैठेंगे. अरे Satan ने मेरा पोजीशन लिया, मैं एक्चुअली मैनेजर था अभी, अच्छा. Does Satan want to become a manager? क्या शैतान चाहता है कि वो मैनेजर बने? Manager Satan. No, please listen. सुनिए, So why is he trying to take your position? तो क्यों वो आपका पद लेने की कोशिश कर रहा है? So that he can take your joy. ताकि वो आपकी खुशी चुरा सके. Once your joy is gone,
जब एक बार आपकी खुशी चली जाती है, your strength is gone. आपकी ताकत चली गई. अच्छा से अच्छा आदमी टूट जाता है. This is the thing. Does Satan want your money? क्या शैतान को आपका पैसा चाहिए? Imagine Satan telling people in his demons, आज मैं ना बहुत लोगों को लूटा दे, कितना पैसा है. No sir. नहीं जनाब. He wants to take that joy, but because the joy अगर आदमी से निकल गया, उसकी जो ताकत है वो निकल गई. लेकिन आपको खुशखबरी देना चाहता हूं, अगर आपकी ताकत चीजों से आती है, वो चीजों पे हाथ मारेगा. अगर आपकी ताकत खुदा से आती है, तो माइका लाल कुछ नहीं कर सकता है. Today receive it right now. आज कर लीजिए समय. There is a joy that comes from God. ऐसे ये खुशी और आनंद है जो प्रभु से I'm not आता है. saying money is not important. No sir. ऐसा नहीं कह रहे कि पैसा मायने नहीं Money is important sir. रखता. पैसा महत्वपूर्ण है. पैसा जरूरी है. I'm not saying position important. सब position जरूरी है. But if you can come in the presence of God. लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में आए, Let me be practical. I'm teach practical. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? पैसा, position, घर, property जरूरी है सर. जरूरी है. I know of a family. पासवान जी जानते हैं एक परिवार को. सुनिए. I know of one family. एक परिवार को जानते हैं. This man was on a very good post. और ये आदमी जो अच्छे पद पे थे. Please, when I mean it, very good post. Yes, very good post. और जब कहते हैं अच्छा पद तो बहुत ही अच्छा पद. This man, ये व्यक्ति for some politics in his company, he lost his position. और उनके कंपनी में कुछ पॉलिटिक्स की वजह से अपना पद गंवा बैठे. Believe me, यकीन माने. they had to sell their things in their house to maintain that family. और देखिए अपने घर की जो चीजें थी उनको बेचना पड़ा उस परिवार को बनाए रखने के I लिए. met that couple. उस जोड़े से मिले. They had one daughter and 3 of them. I met that wife. पत्नी और पति मिले उनसे. I said, how is it going on? So and so. I'll not take the name. और इन्होंने पूछा कि घर की हालत कैसे, अभी क्या सब कुछ कैसे चल रहा है. You know what she said? आप जानते हो उन्होंने क्या कहा? By the grace of God, परमेश्वर के अनुग्रह से life is going on. जिंदगी चल रही है. But we know लेकिन हमें पता है God will do something. परमेश्वर कुछ जरूर करेगा. Wait a minute. ठहरिए जरा. They were going through very tough conditions. बहुत ही मुश्किल दौर में से जा रहे थे. Their cousin और के रिश्तेदार was one of my team members. जो इनके एक टीम मेंबर में से. She said, Pastor, उन्होंने कहा पासवान जी they're eating 1 meal a day. दिन में सिर्फ एक ही टाइम का खाना खाते हो. 1 meal a day. एक time का खाना. I tried to bring things for them. They said, no, Pastor, don't worry. Everything will be all right. Within 7 to 8 months, 7-8 महीनों में this man ये व्यक्ति was called in Qatar. कतार में को बुलाया गया. He got even a better position than that was in his company. जो उनके कंपनी में उनको जिस पद पे थे उससे भी बेहतर पद इनको वहां मिला. 6-7 months, the whole scene changed. 6-7 महीने में सारी दशा बदल गई. सेटन तुम्हारे चीजों पर हाथ मार सकता है, लेकिन खुदा की ताकत, खुदा के आनंद पर वो कभी नजर भी नहीं मार सकता है. I want to tell the women, I want to tell the men, सभी मर्दों से और महिलाओं से कहना चाहते हैं, don't allow your joy to go down. आपकी खुशी को शैतान को चुराने मत दीजिए. खुदा ने हमें जिंदा रखा है, वही बड़ी मिरेकल है. कितने पैसे दोगे आप जिंदा रहने के लिए? कितने पैसे दोगे सांस लेने के लिए? ये बहुत बड़ी चीज है. अगर आपके अंदर वो जान है ना, तो याद रखो खुदा कुछ करेगा. Don't get depressed. निराश मत Today होइए. connect with the Lord. प्रभु से जुड़ जाएं. The enemy knows. शत्रु जानता He है will, you lose your sleep. आप अपनी रात की नींद गंवाएंगे. You lose your health. अपना स्वास्थ्य आप बिगाड़ लेंगे. The joy of the Lord. प्रभु की खुशी आनंद. Get that. Look at somebody and say the joy of the Lord. किसी को देखकर कहे प्रभु का आनंद. When people come to me and say, like that, I know immediately they have not been in the presence of और God. जब इस तरह के आके इनसे मिलते हैं और बात करते The हैं last समझ one. जाते हैं कि प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहे हैं. बाजी वाले को बोलो, you can come to know अपने पड़ोसी को बोलिए they have not been in the presence of God. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. And I'll tell you a secret. और एक रहस्य बताते हैं. These 3 people, I'll tell you a secret. Listen, today, this man is the assistant VP, or I don't know if assistant or VP actually, of a top fintech company in Qatar. कतार में एकदम उच्च श्रेणी की जो Yes. कंपनी है He's still there. अभी भी वहां पे उच्च पद पे कार्यशील है. Praise the Lord. I'm telling you, sir.
top fintech company which does business all over GCC. पूरे खाड़ी देशों में जो वहां व्यवसाय करते हैं. And the fourth thing, go to Isaiah 10:27. And the yoke shall be broken because of the anointing oil. अभिषेक की तेल के वजह से जुआ तोड़ दिया जाएगा. Look what it says. देखिए वचन It shall come to pass in that day. ऐसा होगा उस दिन. कौन से दिन? जब आदमी उसकी उपस्थिति से जुड़ जाएगा. अगर हमारे पास 1.5 करोड़ 1.5 लाख का फोन हो, 18 16, come on, yes or no? ऑपरेटिंग सिस्टम 18 आया है, अब ये 16 चल रहा है ना. कुछ नहीं भाई, लोग थोड़ा सा बदली करते हैं, इधर उधर आगे पीछे करते हैं, कुछ पब्लिक बहल जाती है. 60, yeah, okay. It shall come to pass in that day. उस दिन ऐसा होगा That his burden will be taken away. कि उसका बोझ हटा दिया जाएगा. Everyone say, Satan's burden. सब लोग शैतान का बोझ will be taken away from your shoulder. तेरे कंधे पर से हटा And दिया the जाएगा. yoke. उसका जुआ. When I was small, पसवानी छोटे थे. I saw this movie. They put that thing over here. देख रहे थे वो एक फिल्म को. Anybody? Come on now. Don't act so holy, yaar. Public तो ऐसा हाथ नीचे कर रही है ऐसा. They put this thing in there. Come on now. Yes or no? Yes. And I remembered, oh, the yokes are like that. तब याद है, ओ जुआ सब ऐसा होता है. Am I right, sister? And the yoke will be destroyed. गले में बांधते थे ऐसा, गले में ऐसा मेटल का बांधते थे और ऐसा खींचते थे, पूरा आदमी हिल जाता बेचारा. This is how they used to treat prisoners. और इसी तरह से जो कैदियों के साथ बर्ताव करते. And the yoke will be destroyed. Why? Because of the anointing oil. और वो जुआ जो है नाश कर दिया जाएगा. क्यों? अभिषेक के तेल की वजह से. Maybe you are under the yoke of debts. शायद हो सकता है कर्जे के जुए के तले You are under the yoke of loans. या फिर हो सकता है लोन के जुए में है. You are under the yoke of some addiction. कुछ प्रकार के व्यसन के आप जुए में हैं. You are under addiction of fornication. गंदे कामों के आप जुए में हैं. It will be broken ये तोड़ दिया जाएगा by the anointing oil. अभिषेक के तेल के जरिए. What do you mean, Pastor? पासवान जी आपके कहने का Today, मतलब as we worship God, आज जैसे परमेश्वर की आराधना करते that हैं, anointing is going to fall upon your वो life. अभिषेक आपकी जिंदगी पे उतरने जा रहा That है. glory is going to come upon your life. महिमा आपकी जिंदगी पर आने मैं वाली है. सारे वॉलंटियर से बोलना चाहता हूं, कभी कभी दूसरों को खिलाते खिलाते खुद भूखे न रह जाए. Connect with God. I want to tell the people on the stage, you're so busy. That's why the anointing is not touching you. और इसी वजह से अभिषेक आपको छूता नहीं है. I want to tell the people who are serving God, जो लोग परमेश्वर की सेवा करते हैं उनसे कहना चाह रहे हैं. oh, ये वायर निकाल, ये निकाल, वो निकाल, वो निकाल. अरे बाबा, लोग बोलेंगे तू इतनी सेवा करता है तो ऐसा क्यों है? Because you're not connected to the presence of God. Once you connect to the presence of God, that anointing will break the yoke of the devil. एक बार जब आप परमेश्वर की उपस्थिति से जुड़ जाते हैं, वो अभिषेक जो है शैतान का जुआ तोड़ देगा. Can I have a good amen, somebody? मैं सुन सकता इस वक्त. Somebody shout hallelujah. चिल्लाएंगे हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Many times, listen to me. देखिए बहुत बार. Church, you're not ready. कलीसिया आप तैयार नहीं है. Listen to this. सुनिए इसे. One day I was with my team members. और एक जब टीम मेंबर के साथ थे, Not in Goa. गोवा में. I'll tell you. And I think it was a few of us. और लगता है कुछ हम में से कुछ. And we started praying. और हमने प्रार्थना करना शुरू किया. We started praying. प्रार्थना करना शुरू किए. Started praying. प्रार्थना करना शुरू And we किए. just worshiping. और बस आराधना कर रहे थे. And the glory came. और महिमा आई. Somebody entered the room. कोई तो घर के अंदर आया. Bang! The fellow fell down. झट से वो व्यक्ति गिर गया. Said, किधर जाता? अरे क्या कुछ हो रहा है. I said, कितने जाए ना? मैंने कहा कुछ हो नहीं रहा. कल्लू मामा गया. कल्लू मामा निकल गया. Sir, I'm telling you the truth. सच्चाई आपको बता. It happened last Thursday. पिछले गुरुवार को हुआ. Just worshiping God. बस परमेश्वर की आराधना करना. And the glory came. और महिमा आई. In the studio. People started falling. Tak. लोग गिरने लग गए. Today, आज will you allow yourself to be soaked in the presence of God? क्या आप इजाजत देंगे कि आप अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी तरह से डुबो लें? हाँ, क्या करें? डुबो ले. कोई भी औरत से पूछो, soaking the meat, soaking the thing. Come on now, praise the Lord. You marinate it. उसको पूरी रात भर भिगो के रखते हैं और बाद में उसको टेस्ट आता है. कोई हस्बैंड बोल रहा है, तू तो नहीं करती ऐसा. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. All the women know. सभी महिलाएं जानती हैं. They put it overnight पूरी रात भर के लिए वो रखती हैं. and that masala goes inside. और वो मसाला अंदर चला जाता है. It changes that thing. और उस चीज का स्वाद बदल देता है. What about you? आपके बारे में क्या? That's what is called soaking in the presence of God. Everyone says soaking. उस उपस्थिति को
Oh, it's coming. It's coming. ये आ रहा है। There's a man of God. There's a mighty man of God. परमेश्वर बड़े सामर्थी जन, They called William Marion Branham. विलियम मरियम ब्रैनम, Poor guy. एकदम He गरीब, would soak himself in the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी तरह से अपने आप को डुबा लेते थे। I love him. बहुत पसंद करता हूँ। When he used to stand on the stage, और जब वे आके मंच पे खड़े होते, an angel would stand with him. उनके साथ स्वर्गदूत खड़ा होता। I'm telling you, कह रहे हैं आपसे, amazing man of God. परमेश्वर बड़े जबरदस्त जन। I'm going to tell you, church. आपसे कहना चाहते हैं, Some of you, you're not ready. आप कुछ लोग तैयार नहीं है। ऐसा नहीं कि एक गाना गाया थोड़ा सा ना सा नहीं जनाब, सबने बोलो डूब जाओ। सब लोग डूब जाओ। वो चीजें जो सालों से है तुम्हारे अंदर, वो चीजें जो इतने जो पैटर्न्स है, जो बाप दादा की जो पैटर्न्स है, जो बाप दादा के बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, do you know ancestral curses break when these things happen? आप जानते हैं पूर्वजों वाले जो श्राप टूट जाते हैं जब ये चीज होती है। Can I tell you something? It will shock you. क्या आपको बता सकते हैं कि आपको हिला के रख देगा। Go home घर जाइएगा and just sit for 1 hour quietly and do a study of your ancestors. जाकर खामोशी से बैठिएगा और आपके पूर्वज जो रहे Do उनका it. अध्ययन करें। Do some research. कुछ तो अध्ययन करें, रिसर्च करें। Ask your uncle, auntie. आपके अंकल आंटी से पूछेगा, Seriously. You will find out आपको पता चलेगा the same sins, कि वही पाप, the same failures, वही नाकामियां what you are going through, जिसमें से आप गुजर रहे हैं, even your ancestors went through. आपके पूर्वज लोग भी उसी में से गुजरे। I'll say that again. फिर से कहेंगे, वही जो failures, वही नाकामियां, वही जहां पर वो पाप में गिरे या किधर गिर गए, उनको गुस्सा आता है, उनका बोलने का तरीका, उनका रूठने का तरीका, उनका जो same thing वही चीज will be inside of you. आपके अंदर भी होगी। It's dangerous. ये खतरनाक है। Many people you say, अरे तू तो तेरे grandfather जैसी ही बात करती है। अच्छा, dangerous, dangerous. खतरनाक। I'm telling you, church, where your grandfather fell in sin. I'm with Auntie Lizzie. Forget it now. God forbid if your name is Lizzie. And the family saying, oh, no, they were just friends. और परिवार कहता है, नहीं वो तो बस दोस्त लोग। We know. And now, और अब you are with some Susie. आप किसी और सूजी के साथ। Sir, but when you soak in the presence of God, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में अपने को डुबोते हैं, these things break. ये चीजें टूट जाती हैं। Today it is going to happen in the name of आज ऐसा होने Jesus. जा रहा है यीशु के नाम में। Today it's going to happen in the name of आज ऐसा होने Jesus. जा रहा है यीशु के नाम में। Lift your hands and say, first thing, अपने हाथ लगा के पहली चीज healing. चंगाई। Lift your hands and say, healing. अपने हाथ लगा के चंगाई। Second thing, दूसरी चीज direction. मार्गदर्शन। Come on, loudly say चलिए direction. जोर से कहेंगे मार्गदर्शन। Third thing, तीसरी चीज joy. आनंद। Come on, joy. Are you listening? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? And the fourth thing, और चौथी चीज the yoke will be broken. जुआ तोड़ दिया जाएगा। Some of you, आप में से कुछ you are in financial problem. It's not that don't make money. You make money. आप पैसों की समस्या में देखिए, ऐसा नहीं कि आप पैसा कमाते नहीं, काफी पैसे कमाते हैं। 1000 दे, कल देगा, 5000 दे. It's a pattern. ये चलता रहने वाला चक्र सिलसिला Today है। I decree and declare it's breaking right now. ऐलान करते हैं कि टूट रहा है इस वक्त। Somebody lift your hands and begin to pray in tongues right खुद अपने now. हाथ अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे इस वक्त। Lift your hands and begin to pray in tongues right पहले अपने now. हाथ अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे Thank इस you, वक्त। Lord. धन्यवाद प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु।